my friends. Hope you are all in good health. So today's topic is cognitive. As I said in my previous video, that we will cover the cognitive therapy, and this will our last video of this subject psychology. So inshallah we will complete this topic in our today's video. First of all, we do have to know that what is the meaning of cognitive. Cognitive mean the knowledge. So based on assumption that psychological problems are due to maladaptive patterns of thinking, इनकी वजह से जितने भी रीजंस होते हैं इसके लिए कौन सी थेरेपी यूज़ की जाती है, कॉग्निटिव थेरेपी. क्योंकि अब वो मैल अडेप्टिव नेचर की वजह से आ रही हैं, थिंकिंग की वजह से आ रही हैं, तो ओबियसली थेरेपी भी कॉग्निटिव होगी, कॉग्निशन से होगी, थिंकिंग की, कि हम थॉट इस तरह के पर्सन को देंगे कि वो जो है फिर इमोशनली उसके साथ हम अपना कनेक्शन बिल्ड करेंगे सो दैट ही विल heal. Next is self-serving bias. Tendency to judge oneself favorably, and severely depressed patients tend to have decreased self-serving bias. Rational emotive therapy क्या है? RET developed by Albert Ellis. People's difficulties are caused by their faulty expectations and irrational beliefs. यानी कुछ लोगों को ये भी ट्रॉमास होते हैं कि वो खुद ही सोचते रहते हैं, ठीक है, हालांकि रियलिटी में ऐसे होता नहीं है, दूसरे लोग उसके बारे में ऐसे सोचते नहीं हैं, जस्ट उसने अपनी अजम्पशन बनाई होती है कि मैंने ये एक्ट किया है तो लोग मेरे बारे में ये सोचते हैं, या फिर अपनी तरफ से ही वो कोई ना कोई जो है वो राय बना के उसमें सोचता रहता है, या फिर ऐसे ही बिला वजह लोगों से एक्सपेक्ट करता रहता है कि ये मेरे साथ ये करेगा वो करेगा. फिर जब अगला बंदा उसकी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरता तो फिर जो है वो नाउम्मीद हो जाता है. या फिर इरेशनल बिलीव्स होते हैं, ठीक है, वो चीज़ें जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ऐसे ही अपने अकीदे बना लेता है और उस पर यकीन करना शुरू कर देता है. ABC मॉडल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है. इस पूरे टॉपिक में यही चीज़ समझने वाली है, ABC मॉडल. A फॉर एक्टिवेटिंग इवेंट, B फॉर बिलीव्स एंड C फॉर कॉन्सिक्वेंसेज. यानी एक बंदा किस तरह किसी इवेंट से एक्टिवेट करता है अपने उस थिंकिंग को, फिर उसके बिलीव्स बन जाते हैं उस चीज़ को लेकर, और C जो है फिर वो कॉन्सिक्वेंसेज, उसके नतीजे फिर क्या देखने को मिलते हैं. फैमिलीज़ पूरी सफ़र करती हैं उसमें, और फिर बंदा भी जो है वो इमोशनली डैमेज हो जाता है. When an activating event A occurs, it is the person's belief B about the event that cause emotional consequences. So effective in treatment is depression, anxiety disorder and social phobias. Social phobias का मतलब डर, fear. तो सोशल फोबिया क्या मतलब है कि ऐसा इंसान फिर जो है वो लोगों से मिलने जुलने से डरता है. एक्टिवेटिंग इवेंट्स देन ट्रिगर्स बिलीव एंड कॉजेज कॉन्सिक्वेंसेज. सो हाउ RET वर्क. अब हम देखेंगे RET कैसे वर्क कर रही है. RET भी हमने पढ़ा क्या है, RET रेशनल इमोटिव थेरेपी. सो अभी हमने देखना है डिटेल से कि क्या है ABCDE. पहले भी हमने ABC मॉडल देखा, अब देखना है कि RET में ABCDE का क्या मतलब है. A फॉर एक्टिवेटिंग इवेंट्स, B फॉर इरेशनल बिलीव्स, ठीक है, B से बिलीव्स, इरेशनल बिलीव्स, C से इनअप्रोप्रिएट कंसिक्वेंसेज, D से डिस्प्यूट एंड योर बिलीव्स, and E for effects of disputing. So rational beliefs, appropriate feelings and disable behaviors. Arensberg cognitive therapy कहती है based on assumption that thoughts, moods and behaviors are interrelated. ये सारी चीज़ें आपस में relate होती हैं. Books believes that depressions are other psychological problems and caused by distorting thinking and unrealistic beliefs. Schemas क्या है, ये MCQs में पूछ लेता है कि schema. So method for organizing the way that we view the word theory evolving into distorted behavior. So its focuses on changing clients' unrealistic beliefs. Cognitive bias क्या है, डिप्रेशन की arbitrary inference इसमें बहुत ज़्यादा interrelate करती है. drawing a negative conclusion when there is little or consequences spotted. Selective abstraction means focusing on single negative detail, ignoring more important aspect of situation. Overgeneralization means drawing a sweeping global conclusion based on isolated incident and applying that conclusion to other unrelated areas. Magnification and minimization means overestimating the impact of negative events and underestimating the impact of positive events. Personalization tells that taking responsibility, blaming oneself, or applying external events to result. So difference between Alice RET and Book's cognitive therapy का क्या मतलब है कि इनका होमवर्क डिफरेंट है, ठीक है. एफिशिएंसी मेजर्ड अरेंजमेंट एंड रेट ऑफ मैथड 70-85% जो है वो थेरेपी, बहुत ज़्यादा पेशेंट जो है वो ठीक हो जाता है. एक लास्ट टॉपिक है CBT, वो भी अभी हम कर लेते हैं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी. एन इंटीग्रेटेड थेरेपी दैट कंबाइंस कॉग्निटिव थेरेपी विद बिहेवियर थेरेपी इज नोन एज CBT. अब देख ही सकते हैं कि बिहेवियर और कॉग्निटिव दोनों साथ साथ मिलकर चलेंगे तो वो कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी है. इसके 3 में से एक्सपेक्ट है, यहाँ पे एक डायग्राम बनी हुई है. कोर बिलीफ्स क्या है, अदर, फ्यूचर, योरसेल्फ, ठीक है.
बिहेवियर, फीलिंग्स, थॉट, ये तीनों चीज़ें आपस में इंटर करती हैं। ये इसके कुछ इफ़ेक्ट लिखे हुए हैं, ठीक है, कि क्या इफ़ेक्ट्स हैं पहले बाद के क्या हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने डिटेल से देख लेना है। इफ़ यू हैव any questions, so you can ask me in comment section. Till that, if you don't subscribe my channel, then please do like and subscribe. Okay, see you all with the new subject. Till that, Allah Hafiz, take care.